उनको अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ, वो पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, उनको पता ही नहीं, तो मजाक हो जाता है फिर क्लास में। तो 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता, आता ही नहीं उनको। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, तो आप लोगों का शिप पे जाओगे, यू विल बी क्वाइट नॉलेजेबल ऑन लॉ। अब STCW is Standards of Training and Certification of Watchkeeping Officers. Full form है Standards of Training and Certification of Watchkeeping Officers. So that came in 1978, and the parties undertake to give effect to the provisions of इसका थोड़ा सा easy करते हैं, इतना ये सारे वर्ड टू वर्ड थोड़ा बोलेंगे, इसको तो आगे करते हैं। तो STCW में आपके स्टैंडर्ड क्या है, आपके सर्टिफिकेशन क्या है, और आप अपडेट कैसे करोगे, वैलिडेशन कैसे करोगे, ये सब आएगा। तो इसलिए प्लस आपके सर्टिफिकेट्स कैसे हैं, फ्रॉडलेंट तो नहीं है, वो सारा है। बिकॉज आपकी सेफ्टी का इफेक्ट है, आपके जहाज में आपका हाथ है, आप अगर ऑफिसर हो तो शिप की सेफ्टी आपके हाथ में है। वॉच के टाइम अगर आपकी सर्टिफिकेट डूबियस हो तो आप एक्सीडेंट क्रिएट करोगे तो लोग मरेंगे, प्रॉपर्टी डैमेज होगी, मरीन पोल्यूशन होगा। इसीलिए द सीफेरर्स टू बी क्वालिफाइड एंड फिट फॉर देयर ड्यूटीज। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो भी इसमें आएगा, COC क्या होगा वो भी इसमें आएगा, क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपके मेंटेन होंगे वो भी इसमें आएगा, क्या क्या कोर्सेज करने हैं उसको मेंटेन करने के लिए वो भी इसमें आएगा। So certificate issued and endorsed by the flag state for masters, officers, GMDSS in accordance with the chapter 2, 3 or 7 entitles the lawful holder to serve in capacity and perform the functions as per the responsibility specified in the COC. इसके लिए आप लग रहे हो, COC लेने के लिए तो एग्जाम दे रहे हो। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, वो होता है लाइक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी फॉर सर्वाइवल क्राफ्ट। So that's a certificate other than certificate of competency, stating the relevant requirements of training, competencies, seagoing service in convention. Certificate मतलब आपके पास certificate है। Seagoing means a ship other than those which navigate exclusively in inland waters and waters within or closely adjacent to sheltered waters. उनको छोड़ के बाकी जहाज है seagoing. Radio regulations cover all official documents required under STCW, which include certificates of competency, endorsement, certificate of proficiency, documentary evidence showing the requirements to be met, and the application will be new technology, क्योंकि अब STCW 2010 हुआ मनीला में, so that refer to new technology which was ECDIS। पुरानी टेक्नोलॉजीज जो डायरेक्शन फाइंडर थी, डेका, लोरान, ये सब फेज आउट हो गया। पहले ये होता था आपके पोजीशन फाइंडिंग के लिए। देन इनकंसिस्टेंसीज मतलब जो पुरानी चीजें होंगी विच आर नॉट कंसिस्टेंट, इंटरप्रिटेशंस, आउटडेटेड प्रोविजंस, उनको हटा लिया गया। एंड आपका सर्टिफिकेशन चैप्टर 1 में आता है विच विल रिक्वायर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑफशोर एंड शॉर्ट सी शिपिंग। प्लस ILO के मैरीटाइम MLC को जो है उसको अमेंडेड STCW के साथ हार्मोनाइज किया जाएगा। तो सर्टिफिकेट्स फॉर मास्टर्स ऑफिसर एंड रेटिंग शुड बी, आप रेटिंग की भी आ गई है सर्टिफिकेट, तो आपको पता होगा STCW 2010 के बेसिस में रेटिंग्स के भी एग्जाम होंगे और रेटिंग्स का भी COC होगा। So they have to meet the requirements of service, age, medical fitness, training, qualification, and examinations as per the provisions of this annex. Certificates for master's officers shall be endorsed by issuing administration as per the annex form. And if the language is not English, the endorsement should be in the translation of that. अब कई बार dispensation की condition आ जाती है, जब आपका ऑफिसर नहीं है तो somebody else can be, which who has a valid certificate of competency can get a condition of dispensation for not exceeding 6 months. So in that circumstances of exceptional necessity, and if it does not cause danger to the person's property or the environment, then आपको dispensation issue किया जाएगा to serve for a period not more than 6 months, other than that of radio officer, for which he does not have to hold appropriate certificate. Dispensation shall not be granted to master or chief engineer.
except in force majeure, and that also may be for very short time, that is 1 day, 2 day or 3 day, not 6 months. शॉर्ट टाइम में डिस्पेंसेशन मिल सकता है. मास्टर डेथ हो गई, फिर क्या करोगे? जब एक केस हुआ था, आई वाज एट चेन्नई एंकरेज, तो we were at anchor. I think I was in Prafulla, that was the SCI container ship, and it was a cadet ship. We were cadets there, and दूसरा जो जहाज था वो अंदर जाना था उसको, लेकिन एंकर पे था, तो मास्टर चला गया था शोरली, और बाई बोट ही हैड गॉन. तो उसने सोचा भाई यहाँ लंबा एंकर है, जो तो मैं घर हो गया, तो चेन्नई का ही था, तो घर चला गया. अब सडनली वो ऑर्डर आ गया कि बर्थिंग करनी है, तो वो भाग के आया कि भाई बर्थिंग करनी है. तो बोट से जैसे ऊपर चढ़ रहा था, उसका हाथ स्लिप किया, पानी में गया. उसके बाद उसका कुछ पता नहीं, कोई बॉडी का पता ही नहीं. अब उसके बाद उन्होंने VHF में कॉल किया, डिस्ट्रेस हो गया, बोट्स लगाई, बॉडी का पता नहीं लगा, बॉडी मिली ही नहीं. उसके बाद फिर अब अंदर लाना है तो कैसे लाया जाए? तो फिर डिस्पेंसेशन पे, शॉर्ट डिस्पेंसेशन पे चीफ ऑफिसर को मास्टर का रोल करना पड़ा और अंदर लाना पड़ा. बाद में मास्टर आया. तो ये शॉर्ट डिस्पेंसेशन होता है. फोर्स मेजर में मास्टर मर गया, क्या करोगे? तो शॉर्ट डिस्पेंसेशन में चीफ ऑफिसर ने मास्टर का रोल किया, जहाज को अंदर लाया, और उसके बाद असली मास्टर आया बाद, 1-2 दिन के बाद. तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो एक्चुअल एग्जाम्पल था. So any dispensation granted for a post shall be granted only to a person properly certificated to fill the post immediately below. तो ये था आपका एंडोर्समेंट एंड डिस्पेंसेशन. अब आगे करते हैं STCW एंड PSC का क्या रोल है. So STCW when ships when in port, they are subject to port control, port state control this checks to verify that seafarers जो जहाज पे हैं, they have necessary certification or hold valid dispensation. So a ship which extends its voyage beyond what is defined as near coastal voyage by party shall fulfill the requirements of convention without relaxation allowed for near coastal voyages. So mandatory requirements हैं इनमें certification of master, officers and rating, radio telephone operators, able seafarers, deck or engine and ratings forming part of navigation watch or engineering watch, mandatory minimum requirements for training and qualification of master, officer, rating for oil, chemical and gas tankers. ये basically familiarization है, जो OCTF है, ये सब इसमें आता है. Mandatory minimum requirements for continued proficiency of updating masters, deck engineer, radio officers and ratings. ये revalidation course है. Basic principles to be observed in keeping navigation and engineering watches. Mandatory minimum requirements for issuance of certificate of proficiency in survival craft, rescue boats other than fast rescue boats. So ships can be checked by your PSC. They will come on board to check whether you hold the appropriate certificate or dispensation, and such certificates shall be accepted unless clear grounds are issued to the ship if they believe that the certificate was fake. किसी और का सर्टिफिकेट है, आप अपना नाम डाल के उसमें जहाज पे सेल कर रहे हो, तो ship will be arrested till that new person joins on board. Information deficiencies है कि in event any deficiencies are found in paragraph that the officer carrying out the control shall inform in writing to the master. जब उसने deficiency देख ली port state control ने, तो he'll write in writing to the master or the council, और अगर वो भी नहीं है तो diplomatic representative or maritime authority of the state जिसका, और flag state को message डालेगा कि भाई these are the information deficiencies on board and the ship is not allowed to sail if there is danger. So if these deficiencies pose a danger to persons, property or environment, जैसे oil
डिस्चार्ज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा है टैंकर पे, so that is a threat to the environment. So this is a major non-conformity, and the ship will not be allowed to sail till that is rectified. So Manila Amendment जो 2010 में आए थे उसमें hours of rest include किया गया जो पहले नहीं था. Medical standards को tough बनाया गया. Mandatory drug and alcohol limits बनाई गई. Able seafarer for deck and engine इनके exams हो गए. Modernization of deck and engineering competencies. So this started, conference started in 21st June 2010. 5 दिन इनको लगे consensus लेने में क्योंकि STC W95-98 को amend किया गया. So it has come in force from 1st January 2012. But अभी भी कुछ सर्टिफिकेट में आपका 98-95 लिखा जा रहा है. तो ये कुछ कोर्सेज में अभी भी 2010 नहीं 95-98 लिखा जा रहा है क्योंकि डीजी शिपिंग अकॉर्डिंगली फेजिंग आउट कर रहा है एंड ब्रिंगिंग इन 2010. Now the major changes and अब ये जो ई लर्निंग है वो भी एक पार्ट था मनीला कन्वेंशन का अमेंडमेंट का और अभी आप ई लर्निंग कर रहे हो. So this was the future of STCW, बट ये कोविड के कारण पहले हो गया. तो कोरोना खत्म हो या ना हो ये ई लर्निंग तो चलेगा. So major changes and amendments were made for engine department followed by other structure of system. और इसमें important changes था one revalidation for higher and managerial level officer for COC issued by any governing authority. Number 2 was new improved training guidance for crew and officers serving on board. Number 3 was new requirements for MARPOL awareness, जिसमें leadership and teamwork था. 4 was stringent measures for preventing fraudulent certificate of competencies, क्योंकि लोग नकली बना के घूमते थे जहाज पे, उसको प्रिवेंट करना था. इसीलिए इंडोस नंबर भी आएगा, पहले इंडोस नंबर नहीं था तो फ्रॉडुलेंट COCs आ जाते थे. तो इंडोस नंबर भी was part of this to prevent fraudulent COCs. Then आया आपका रेस्ट ऑन बोर्ड, अब 77 आवर्स हो गया था, पहले 70 आवर्स था. नंबर 6 वॉज बत्ती साहब जो अब बन गए थे इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, अब इनका नाम थोड़ा अपग्रेडेड हो गया था, वो इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर हो गए थे. और वो वैसे बत्ती साहब नहीं होंगे, अप्रूव ट्रेनिंग और COC उनके पास भी है. फिर 7 more facilities, better training for junior engineer and cadet to tackle the problem of shortage. 8 will be updated drug and alcohol policy and stringent medical examination. 9 is the requirement of able seamen for COC for boarding the ship. That means seamen and in oilmen, in सब के अपने COC होंगे. 10 will be ECDIS introduction हो गया, and that is mandatory on board now. 11 is stringent competency norm for ship staff serving in tanker, gas and chemical tankers. 12 is new improved requirement for ISPS training and training for tackling the situation of piracy attack. 13 is inclusion of modern training methods जो अभी हम कर रहे हैं, distance learning, web based learning जो अभी हम कर रहे हैं. ये STCW में था लेकिन इम्प्लीमेंट होने में इतने साल लग गए. 14 is new training regulation for ship staff in polar waters and DP vessels जो जा रहे हैं उनके लिए नया ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट and initiative by IMO to cope up with shortage of seafarers as per Go to Sea campaign. तो ये रेस्ट आवर्स का तो इसके बाद कराएंगे, तो अभी मैं इसको नहीं करूँगा. तो STCW तो बेसिक आपको समझाना था वही करवाया है. अब कराते हैं व्हाट इज रेस्ट आवर्स, उसके बाद ये फ्लो चार्ट दिखाएंगे.
जैसे एमएलसी में रेस्ट आवर्स एंड वर्क आवर्स थे, तो एसटीसीडब्ल्यू में भी रेस्ट आवर्स वर्क आवर्स है। तो कई बार आपके शिप में दोनों को अलग अलग भर के देना पड़ता है, क्योंकि दोनों के अंदर के कंडीशन थोड़े चेंज्ड हैं। एसटीसीडब्ल्यू थोड़ा सा और डिटेल्ड में आता है। सो अंडर मनीला अमेंडमेंट्स, all persons who are assigned duty as officer in charge of watch or rating, इन सबके ड्यूटीज इन्वॉल्व डेजिग्नेटेड सेफ्टी, पोल्यूशन प्रिवेंशन, सिक्योरिटी ड्यूटीज, और इन सबके रेस्ट आवर्स आएंगे इसमें। तो रेस्ट आवर्स हो गए मिनिमम 10 आवर्स ऑफ रेस्ट इन 24 आवर पीरियड, और 1 वीक में 77 आवर्स ऑफ मिनिमम रेस्ट इज रिक्वायर्ड। पहले वो 70 आवर्स था, अब उसको उन्होंने 77 कर दिया। तो मतलब 10 घंटे तो आपको रेस्ट मिलना चाहिए, बट मिलता था क्या आपके जहाज पे? हाँ भाई, कैडेट थे तो आप लोगों को मिलता था रेस्ट? नॉट ऑलवेज, बट हाँ, अगर वो तो ओपन सी में तो आपको मिल जाता होगा, लेकिन पोर्ट में तो नहीं मिलेगा ना। हाँ सर, इंडियन कोस्ट पे पोर्ट भी तो 2-2-3 दिन। हाँ, तो 18 घंटे 20 घंटे काम करवाते होंगे ना। गधे के जैसे काम कराते। सही बात है कि नहीं? 30 घंटा 40 घंटा। करेक्ट सर, हमने भी काम किया हुआ है भाई। मेरे को याद है जब मैं कैडेट था, टैंकर पे 72 आवर्स कंटिन्यूअस वॉच रखा था। 72 आवर्स। पता नहीं बेवकूफ चीफ ऑफिसर था, मुझे रिलीव ही नहीं करवा रहा था। तीन मतलब 24 आवर्स इंटू 3, 3 रात दिन कंटिन्यूअस वॉच पे लगा दिया। अब उसके बाद तो फिर हमको समझ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और टैंकर में इतना डेंजरस हो जाता है। अगर 72 आवर वॉच, मतलब उसके बाद कौन सा वाल्व खोल रहे हो, कौन सा बंद करे, कुछ पता नहीं है। इतना डेंजरस हो जाता है। अब हम लोग कैडेट, हम क्या करेंगे? ठीक है भाई, करवा रहा है और हमें जो बोल रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर स्लीप डिप्राइव करोगे, आपका ब्रेन फंक्शनिंग खत्म हो जाता है। 2 दिन अगर आपने नींद ली नहीं, सोए नहीं, तीसरे दिन आपकी एकदम हालत खराब हो जाएगी, इम्यूनिटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए कोरोना के टाइम में नींद लेनी बहुत जरूरी है। बाकी व्यायाम करो, प्राणायाम करो, वो तो है, नींद बहुत जरूरी, इसलिए रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। तो आवर्स ऑफ रेस्ट जो नॉर्मल है, उसको उन्होंने 2 पीरियड में डिवाइड किया। तो जैसे आपके 10 घंटे का रेस्ट है एक दिन में, तो उन्होंने कहा कि 2 पीरियड में कम से कम होना चाहिए। एक को 6 घंटे का होना चाहिए, तो 6 घंटे का एक होना चाहिए, दूसरा फिर आप 4 घंटे का कर दो। 10 घंटे का तो आपको रेस्ट होना चाहिए। एंड इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ रेस्ट शैल नॉट एक्सीड 14 घंटे। मतलब अभी आपने एक रेस्ट दिया, उसके बाद दूसरा रेस्ट पीरियड के बीच में घंटे से ज्यादा कंटिन्यूस काम नहीं करना। इंटरवल बिटवीन 2 पीरियड ऑफ रेस्ट शैल नॉट एक्सीड 14 आवर्स। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन एमएलसी में नहीं है। सो एमएलसी और एसटीसीडब्ल्यू में यही फर्क आ रहा है कि एमएलसी में एक्सेप्शन नहीं है और एसटीसीडब्ल्यू में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि सर्टेन टाइम में आपको रेस्ट पीरियड इन 1 वीक को 70 घंटे से कम, 27 से 70 घंटे तक ला सकते हैं, नॉट लेस देन 70 आवर्स। तो 77 आवर्स आपके था इन 7 डेज, बट उसको हम 71 आवर्स, 72 आवर्स या 70 आवर्स कर सकते हैं एज एन एक्सेप्शन, जिसके लिए वो आप समझा रहे हैं कब कर सकते हैं। एक्सेप्शन आप कैसे कर सकते हो कि अगर एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सीड मोर देन 2 कंसेक्यूटिव वीक्स। जैसे वीक आपका महीने में 4 वीक है, सो 2 कंटिन्यूस वीक्स में से ज्यादा हम एक्सेप्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम 70 घंटे अभी काम कर रहे हैं, इस हफ्ते 70 घंटे हमें रेस्ट मिला, इस हफ्ते अगला हफ्ते भी 70 घंटे मिला, लेकिन उसके बाद हमें 77 आवर्स मिलना चाहिए। सो 2 हफ्ते हम 70 आवर्स पर वीक को रेस्ट कर सकते हैं, बट उसके आगे नहीं, उसके बाद ब्रेक लेना पड़ेगा। अब आता है क्या ब्रेक है उनके बीच में। इंटरवल बिटवीन 2 पीरियड ऑफ एक्सेप्शन शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ एक्सेप्शन। चलो मैं जरा आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि सपोज आपका 1 हफ्ता हुआ, तो आप 2 हफ्ते
या तो क्योंकि आपका इंटरवल बिटवीन द टू पीरियड्स ऑफ एक्सेप्शन शैल नॉट बी ट्वाइस ऑफ दैट पीरियड। तो ट्वाइस ऑफ दैट पीरियड का मतलब 140 आवर्स। तो 140 आवर्स का ब्रेक मिलना चाहिए जिसमें आपको नॉर्मल नॉर्मल रेस्ट आवर्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपने एक हफ्ते का एक्सेप्शन किया 70 आवर्स का, तो ट्वाइस ऑफ दैट विल बी 140 आवर्स। तो 140 आवर्स में दो आपको पीरियड डालने पड़ेंगे नॉर्मल। नॉर्मल पीरियड है 77 आवर्स, तो दो 77 आवर्स डाले, उसके बाद 70 आवर्स डाल दिए। यह तो हुआ कि आपने एक हफ्ता एक्सेप्शन किया। तो अगर आपने 2 हफ्ते एक्सेप्शन किया, जैसे फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, अब ये कंसेक्यूटिव है, इसके बाद तो ब्रेक लेना पड़ेगा। तो 2 हफ्ते का डबल क्या हो गया, 140 इंटू 2 280 आवर्स। इसका मतलब 4 हफ्ते हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक्सेप्शन आवर्स करना है। ये समझ आया कि नहीं? ये 2 डायग्राम समझ आए? यस सर। उसके बाद वो पॉइंट करेंगे कि अगर एक हफ्ता किया, जैसे ये वाला पहले करते हैं, एक हफ्ता किया तो 2 हफ्ते हमें नॉर्मल करना है। ये तो एक्सेप्शन था, तो 2 हफ्ते नॉर्मल करके हम फिर एक्सेप्शन ला सकते। या अगर हमने 2 हफ्ते एक्सेप्शन किया, इससे ज्यादा नहीं कर सकते लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो 2 हफ्ते हमने 70 आवर्स किया, उसके बाद 4 हफ्ते हमें नॉर्मल करना पड़ेगा। तो मिनिमम रिक्वायर्ड इंटरवल फॉर नेक्स्ट एक्सेप्शन है 4 हफ्ते का, इसमें 4 हफ्ते हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट अलाउड एक्सेप्शन आएगा। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, ये दोनों कंडीशन? क्योंकि उसके बाद वो टर्म पे आएंगे। ये समझ आया? एक बार और बताओ। हाँ भाई, समझ आया कि मैं एक बार और बताएं? चलो वापस से ऐसे करता है, जो वो जो टर्मिनोलॉजी है वो उससे फिर वापस इधर आते हैं। पहला हमने क्या बताया था कि एक्सेप्शन विल नॉट एक्सटेंड फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव वीक्स। इसमें मतलब पहला हफ्ते 70 घंटे, उसके नेक्स्ट घंटे 70 घंटे, उसके नेक्स्ट घंटे हम 70 नहीं कर सकते, तीसरे हफ्ते नहीं कर सकते। 2 हफ्ते लगातार करने के बाद हमें नॉर्मल 77 आवर्स लाना पड़ेगा। नंबर 2, इंटरवल बिटवीन 2 पीरियड ऑफ एक्सेप्शन। मतलब एक हफ्ते की एक्सेप्शन की, तो दूसरा एक्सेप्शन कब होगा, वो नॉट लेस देन ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ एक्सेप्शन। अब इसमें बता रहा हूँ, ये पूरा एक बार और सुन लो। इंटरवल बिटवीन 2 पीरियड ऑफ एक्सेप्शन शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ एक्सेप्शन। तो मैंने एक हफ्ते एक्सेप्शन की 70 घंटे, इसका ट्वाइस क्या हो गया, 140 आवर्स। इसका मतलब 2 हफ्ते मुझे नॉर्मल रखना है, नॉट लेस देन ट्वाइस। मतलब 140 घंटे से कम नहीं हो, उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये हो जाता है 77 इंटू 2 154 हो जाता है। तो वो 140 से तो ज्यादा ही है ना, कम नहीं है। नॉट लेस देन ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ 70 इज 140, so 154 is greater than 140 which is allowed। तो 2 हफ्ते आपने नॉर्मल किया, उसके बाद एक्सेप्शन किया। नेक्स्ट कंडीशन आती है, 2 आपने हफ्ते एक्सेप्शन किया, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते कंसेक्यूटिवली, 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं कर सकते, उसके बाद हमें नॉर्मल करना पड़ेगा। तो कितना गैप रखना है, नॉट लेस देन ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ एक्सेप्शन। इसका मतलब 70 इंटू 70, 17 प्लस 70 140 इंटू 2 280 आवर्स से कम गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें नॉर्मल करना पड़ेगा 77 आवर्स। 77 इंटू 4 जो है वो 280 से कम नहीं है। इसका मतलब ठीक है, 4 हफ्ते हम नॉर्मल करेंगे, उसके बाद एक्सेप्शन करेंगे। ये अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं? अभी भी डाउट है? नो सर। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया?
अच्छा ठीक है। Yes, sir. तो इसी पॉइंट में लोग घबरा जाते हैं लोग कि वो क्या है, इसलिए डायग्राम दिखाना जरूरी है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि इसको रट्टा मारने से पहले आपको समझना पड़ेगा ना, तभी तो रट्टा मारोगे। रट्टा मार लो, समझ आया नहीं तो कुछ और लिख दोगे। अब रेस्ट पीरियड को एक्सेप्शन में 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल में तो हम 2 पीरियड डिवाइड कर रहे थे, एक 6 और एक 4। तो इसमें हम 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 6 घंटे का एक पीरियड है और बाकी जो बचा 2 पीरियड, उसमें एक जो होगा रेस्ट आवर वो 1 घंटे से कम नहीं होगा। तो दूसरा हो गया आपका 3 घंटे का। 1 घंटे का 6 घंटे का एक दिया, 3 घंटे का एक दिया और 1 घंटे का एक दिया। 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं रेस्ट पीरियड। अच्छा, द इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव पीरियड्स ऑफ रेस्ट शैल नॉट एक्सीड, तो कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ रेस्ट के बीच में 14 घंटे से ज्यादा गैप नहीं होगा। और एक्सेप्शन जो होगा वो 2 24 घंटे पीरियड से ज्यादा नहीं होगा हफ्ते में। इसका मतलब कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहे हैं, आपने पहले हफ्ते में 3 पीरियड में डिवाइड कर लिया, दूसरे हफ्ते भी 3 पीरियड में डिवाइड कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बाकी दिन आपको 2 पीरियड में ही डिवाइड कर सकते हैं, 6 और 4 में। 3 पीरियड में नहीं कर सकते। या तो पहले हफ्ते कर सकते हैं या आखिरी हफ्ते कर सकते हैं, मतलब 2 24 आवर पीरियड, चाहे वो कंसेक्यूटिव हो या ना हो, वो नहीं दिया। ये आपके 5 एक्सेप्शंस हैं जो STCW रेस्ट आवर्स में है और MLC में नहीं है। MLC में ये रेस्ट आवर्स का जो एक्सेप्शन है वो नहीं है। सो न्यू IMO रेस्ट आवर्स जो है entered into force in January 2012 and seafarers को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है रेस्ट आवर्स एंड वर्क आवर्स का at least once in a month to ensure that minimum rest hours are stipulated. अब क्या है कि इमरजेंसी में या ओवरराइडिंग ऑपरेशनल कंडीशन में रेस्ट आवर्स को नहीं मेंटेन करना। अब आप नहीं कह सकते कि भाई हम 77 आवर ही देंगे, अगर कोई आग लग गई जहाज में या पोल्यूशन हो गया तो उसमें आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं रेस्ट आवर्स को, और आपको कंपनसेटरी ब्रेक भी नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर आपकी बोट ड्रिल फायर ड्रिल हुई उसके लिए कंपनसेटरी ऑफ मिल जाता है, बट इसमें नहीं मिलेगा। ओवरराइडिंग ऑपरेशन कंडीशन क्या है? इट इज ओनली एसेंशियल शिपबोर्ड वर्क which cannot be delayed for safety or environmental reason, or which could not be reasonably anticipated at commencement of voyage. रास्ते में सुनामी आ गया जिसको आपको पता ही नहीं है, तो ये तो इमरजेंसी आ गई, तो उसके लिए तो जो करना है वो करोगे, उसके लिए रेस्ट आवर्स का चक्कर खत्म, ओवरराइड कर सकते हैं। So muster list, musters, fire drill, boat drill, drills prescribed by national laws, international instruments shall be conducted in manner to minimize the disturbance of rest period, and masters can give compensatory off for that. But in case of any collision, grounding, oil pollution, all those things, your rest hours can be overridden. ये आपको बता दिया। तो जैसे यहाँ दिया है कि अगर आपका ड्रिल हो रहा है, so your timings are work hours, is the vessel complying with work rest hours? Yes, then no further action. No, then will the vessel comply if the drill timings are considered as rest hours? Yes, then mark the drill as work hours and state the reason for non-compliance of drill and training. Vessel is considered to be complying with rest hours and not further action required. Now, drill is not the only factor for non-compliance. Give compensatory rest to comply with the rest hour requirements. State the reason for non-compliance in comments like overriding situation. Routine operations for normal frequent arrivals cannot be considered as overriding situation. Drill to be marked as work hour in any case.
फॉलो कंपनीज प्रोसीजर टू डील विद नॉन कंप्लायंस ऑफ रेस्ट आवर्स। तो उसका मतलब है कि नॉर्मल ड्रिल में आपको रेस्ट आवर्स जो है कंपनसेटरी दे सकते हैं, बट अगर इमरजेंसी हो तो उसमें रेस्ट आवर्स को ओवरराइड कर सकते हैं। तो अभी STCW का आपका वीडियो देखते हैं कोई।